السلام علیکم. بسم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سسٹرز؟ کیا حال ہے؟ الحمد للہ. الحمدللہ. شروع کریں کلاس کو انشاءاللہ. جی گروپ شیئر کرتی ہوں. آج کون سا لیسن پڑھنا ہے؟ ہم نے لیسن نمبر 6 ہمارا ختم ہو گیا تھا لاسٹ ٹائم، کمپلیٹ کیا تھا. آج ہم لیسن نمبر 7 پڑھیں گے، الدرس السابع. ٹھیک. اچھا، اس میں تھوڑا سا پہلے ہم اعراب کی بات کر لیتے ہیں. اعراب کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ کو؟ میں نے کچھ تھوڑا بہت تو بتایا ہی آپ کو. اعراب کیا ہوتا ہے پتہ ہے کسی کو کلاس میں؟ رفع نصب جر. جی، رفع نصب جر کو اعراب کہتے ہیں. اور کیسے شو ہوتا ہے یہ؟ کیسے پتہ چلتا ہے اعراب کسی ناؤن کا، کسی بھی لفظ کا اعراب کیسے؟ لاسٹ والی حرکت کو دیکھ کر. لاسٹ لیٹر کی حرکت کو دیکھ کے. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پر آپ دیکھیں تو الدرس ہے نا، تو یہ کون سی حالت میں ہے؟ رفعی حالت میں. ہاں، رفعی حالت میں. السابع بھی رفعی حالت میں، دونوں سیم حالت میں ہیں. اور دونوں کیا ہیں؟ دونوں معرفہ ہیں یا نکرہ ہے کوئی ایک بیچ میں سے؟ معرفہ ہے. دونوں معرفہ ہیں. اور دونوں مذکر ہیں یا دونوں مؤنث ہیں؟ مذکر ہے. دونوں مذکر ہیں. ٹھیک ہے، دونوں مذکر ہیں. اور دونوں واحد ہیں یا کوئی ایک بیچ میں جمع ہے؟ واحد ہے. واحد ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی واحد ہے، یہ بھی واحد ہے. اور وسعت میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ دونوں، یہ بھی معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے. تو 4 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو اعراب ہی ہوتا ہے. اعراب کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. کوئی بھی نون آپ لیں گے اس کے اعراب کو دیکھیں گے. اعراب کیسے شو ہوتا ہے؟ لاسٹ لیٹر کی حرکت سے. اعراب کا میننگ ہوتا ہے نون کی حالت، پوزیشن. اس کی حالت کیا ہے؟ کیا وہ رفعی حالت میں ہے، نصبی حالت میں، یا جری حالت میں؟ تو اعراب جو ہوتا ہے وہ ہوتی ہے حالت، کسی بھی نون کی پوزیشن یا حالت. وہ اس وقت کس حالت میں ہے، رفعی میں، نصبی میں، جری میں. اچھا، اس کے بعد جو ہم نے دیکھا تھا وہ ہمارا جینڈر تھا. جینڈر کیا ہوتا ہے؟ جنس جینڈر وہ کیا ہوتا ہے؟ مذکر اور مؤنث. ویری گڈ. مذکر ہوتا ہے، یا کوئی بھی نون جو ہوتا ہے یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد اس کی تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ عدد. یہ اسی سیکوینس میں آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، سیکوینس کو چینج نہیں کرنا. اعراب، جینڈر اینڈ عدد. عدد کیا ہے اس کا؟ واحد ہے، یہ بھی واحد ہے. اچھا، ضروری نہیں ہے یہ واحد ہو تو یہ بھی واحد ہو، لیکن اس صورت میں یہ جب مرکب توصیفی بن رہا ہے تو یہ چاروں حالتوں میں برابر ہے. ٹھیک ہے، اعرابی حالت بھی سیم ہے، جینڈر بھی سیم ہے، عدد بھی واحد ہے. تیسری چیز کون سی ہے؟ چوتھی چیز وسعت ہے. اب وسعت میں یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے یا پھر نکرہ ہے. معرفہ کیسے شو ہوتا ہے اور نکرہ کیسے شو ہوتا ہے؟ الف لام. الف لام سے معرفہ شو ہوتا ہے اور نکرہ تنوین سے شو ہوتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ صرف الف لام سے ہی معرفہ شو ہو. حامدن کیا ہے؟ یہ معرفہ نکرہ ہے؟ معرفہ لیکن نام ہے. نام ہے، علم ہے، اس لیے نہیں، موصول نہیں ہے، علم ہے. اسم علم ہے. علم جو ہے نا، حامدن اس لیے معرفہ ہے کہ یہ علم ہے. یہ والا کس لیے معرفہ ہے؟ درس السابع ہوئی کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ یہ معرف باللام ہے. معرف باللام یعنی اس کو الف لام لگا کے، درسن کو الف لام لگا کے معرفہ بنایا گیا، تو یہ معرف باللام ہے. ٹھیک ہے نا، باللام یہاں پہ بھی آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ معرف باللام ہے، یعنی اس کو الف لام لگا کے نکرہ سے معرفہ بنایا گیا. درسن تھا، سابع ان تھا، تو ہم نے الف لام لگایا تو ایک پیش آتے. اچھا، اب ایک اور چیز ہے، حامدن تو علم ہے. کیا حاذا علم، حاذا معرفہ ہے؟ یہ تو معرفہ ہو گیا نا آپ کا، حامد تو علم ہونے کی وجہ سے. حاذا معرفہ ہے؟
इसको मारफा कहेंगे. जी हादा भी मारिफा है क्योंकि वो स्पेसिफिक चीज को बता रहा है. हाँ, स्पेसिफिक, और ये इस्म इशारा है, ठीक है. और इसको इसलिए ये इस्म इशारा है, इसलिए हम इसको इस्म की कैटेगरी में डालेंगे. तो ये इस्म इशारा है. इस्म इशारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इस्म इशारा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. तो हाजा जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है. अलम जो होता है वो नेम होता है, ठीक है. और अलम का मतलब होता है झंडा, निशानी, फ्लैग. तो एक इंसान का जो नेम होता है वो भी उसकी नेम प्लेट होता है ना, एक तरह से. जिस तरह किसी गाड़ी की नेम प्लेट होता है, उसी तरह ये भी आपका क्या होता है, किसी टीम का एक फ्लैग होता है, किसी कंट्री का फ्लैग होता है. तो एक बंदे का भी क्या होता है, उसकी भी एक नेम प्लेट होती है. तो वो हामिद दोनों इसलिए मार्फ है, हाजा है. इसके अलावा मैं आपसे पूछूंगी जमायर के बारे में. जमायर जैसे कोई जमीर की मिसाल दें, मुझे खुद ही दें. जमायर क्या होता है, कोई मिसाल दें. क्या हाजा जमीर है, हाजी ही जमीर है? हुआ हिया. हुआ हिया ही जो है ये जमायर हैं. ये भी क्या होते हैं, ये भी आपके मार्फा होते हैं. इसमें इशारा भी मार्फा है, और जमायर जो है हुआ हिया हो, हुम हो, कुछ भी हो, वो भी मार्फा है, ठीक है. और चौथी चीज क्या है वो आपकी, हाँ एक और चीज रहती है, वो चौथी भी होगी ना, मुरफ़ बिल लाम इस्म. अभी आपने ये चार चीजें पढ़नी है. मुरफ़ बिल लाम इस्म जो होगा, जिसके ऊपर अलिफ लाम लगा हुआ होगा. नंबर 2 जो आपका अलम होगा. नंबर 3 जो आपका इस्म इशारा होगा. और नंबर 4 जो आपकी ज़मायर होंगी. ये चार चीजें जो है ये मार्फा है, इनको आपने याद रखना है, ठीक है ना. तो 2-3 चीजें और भी होती हैं, उनको मैं आस्ते आस्ते आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी फिर. तो ये चार बातें भी याद रखनी है, और ये चार चीजें भी याद रखनी है. मार्फा कब होगा? मार्फा कब होगा? जब वो अलम होगा, मुरफ़ बिल लाम इस्म होगा, इस्म इशारा होगा, इस्म ज़मीर होगा. तो ये सारे फिर जो है जुमले के शुरू में भी आएंगे तो ये मुब्तदा भी बन सकते हैं, ठीक है. मुब्तदा भी बन सकते हैं. अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस लेसन को पढ़ेंगे, फिर आगे चलते हैं, बाकी बातें साथ साथ करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला. तो कौन रीड करेगा? सबसे पहले कौन आया क्लास में? मैं पढ़ूंगा जी. जी, हैंड रेस करें, सब हैंड रेस करें, और जब सुना लें तो हैंड डाउन कर लें ताकि मुझे पता चल जाए. ज़ेबा आइए, पढ़िए. जिसके पीछे शोर है वो नहीं पढ़ेगा. जी जिसके पीछे शोर है वो नहीं पढ़ेगा, प्लीज. जी जी. कोशिश करें पीछे शोर ना. अद-दर्सु साबियु, लेसन 7. मन हाजिही, ये कौन है? हाजिही आमिनतु, ये आमिना है. वमन तिलका, और ये कौन है? और वो कौन है? वो कौन है? तिलका फातिमातु, वो फातिमा है. हाजिही तबीबतुन, व तिलका मुमर्रिज़तुन, ये डॉक्टर है और वो नर्स है. हाजिही मिनल हिंदी, व तिलका मिनल याबानी, ये इंडिया से है और वो जापान से है. हाजिही तवीलतुन व तिलका कसीरतुन, ये लंबे कद की है और वो छोटे कद की है. हाँ ठीक है, सही है. चलिए, कद लगाने की मन जरूरत नहीं है. ये लंबी है, शी इज टॉल, ठीक है. हाँ. अच्छा, शी कहेंगे, हाजी ही को शी कहेंगे? नो यस मैम. नो, हाजी ही को शी नहीं कह सकते ना. हाजी ही को क्या कहेंगे? दिस, ठीक है. दिस इज टॉल, ठीक है. हाजी ही मिनल हिंदी, शी इज, शी नहीं कहेंगे. दिस इज फ्रॉम इंडिया, एंड दैट, मीनिंग जो है ना सही करें, दैट इज फ्रॉम जापान. और यहाँ पर क्या है? दिस इज टॉल एंड दैट इज शॉर्ट. तो जब उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो क्या होगा? ये लंबी है और वो जो है लंबी है और वो छोटी है. छोटी है, ठीक है. आगे. मन हाजा, हाजा हामिदुन, ये कौन है? ये हामिद है. व मन जालिका, और वो कौन है? जालिका अलीयुन, वो अली है. आ तिलका दजाजतुन, क्या वो बदक है? ला तिलका बत्तकुन,
दजाजतुन क्या होगा? दजाजतुन चिकन, क्या कहते हैं उसको? हाँ, मुर्गी, मुर्गी, मुर्गी का मुर्गी बच्चा। कहते हैं। मुर्गी का बच्चा हाँ, नहीं, मुर्गी, मुर्गी। हैन, मुर्गी। हैन होती है ना चिकन क्या में जो वो मुर्गी है? हैन, ठीक है ना? क्या वो अच्छा, हाँ। मुर्गी है? ला ला तिलका बत्तकुन, नहीं वो बतख है। इसको दोबारा पढ़े, ला तिल का बत्ततुन, बत्ततुन, बत्ततुन क्या नहीं होगा? वो बतख है। बत्तख है, बत्तख है, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में इसको डकलिंग कहते हैं, किसी को समझ ना आए तो। अच्छा, दोबारा से इसको पढ़ेंगे और सही ट्रांसलेशन के साथ। कौसर के बाद फरजाना आप आ जाइए। कौसर अपना हैंड रेज कर, डाउन करें। आयशा आप आएंगी? आयशा खान, आयशा। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, पढ़िए। मन हाज़िही, ये कौन है? हाज़िही आमिनतु, ये आमिना है। वमन तिलका, और वो कौन है? और ये कौन है? नो, वो कौन है? तिलका मीन वो, ओके। और वो कौन है? तिलका फातिमतु, ये और वो फातिमा है। हाज़िही तबीबतुन व तिलका मुमर्रदितु। दोबारा पढ़े, मुमर्रिदतुन। मुमर्रिदतुन, ये डॉक्टर है और वो नर्स है। जी, हाज़िही मिनल हिंदी व तिलका मिनल याबानी। ये हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान से हैं। ये हिंदुस्तान से है। व तिलका मिनल याबानी, और वो जापान से है। हाज़िही तवीलतुन व तिलका कसीरतुन। ये लंबी है और वो छोटी है। मन हाजा, ये कौन है? हाजा हामिदुन, ये हामिद है। हाजा हामिद, आगे पढ़िए। वमन जालिका, और वो कौन है? जालिका अलीयुन, और वो अली है। अली है। अतिलका दजाजातुन, जातुन, दजाजतुन, दजाजतुन। ये शॉर्ट वॉवेल है ना, इसको छोटा पढ़ना है ना। दजाजतुन। तिलका दजाजतुन, क्या ये मुर्गी है? ला तिलका बत्ततुन, नहीं ये मुर्गा है। तिलका का मीनिंग क्या होता है? तिलका वो, ठीक है ना, तिलका वो। और हाजा, ये, और हाजी ही, ये मोनस के लिए होता है, और हाजा किसके लिए होता है? ये पता है आपको, मुज़क्कर के लिए होता है ना। अच्छा, यहाँ पर हामिद के साथ आया था हाजा, क्योंकि ये हामिद क्या है? मैस्कुलिन, उसके साथ हाजा आया है। जब लड़की का नाम लेंगे, मरियम लेंगे, तो फिर क्या लगाएंगे? हाजी ही लगाएंगे। अगर करीब कोई चीज होगी तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? कौन सा इशारा यूज करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करीब के लिए? ये हामिद है, हाजा हामिदुन, ठीक है ना। ये हामिद है, हाजा हामिदुन। ये मरियम है, हाजी ही आगे क्या होगा? हाजी ही
मरियमु, हाजी मरियमु, मरियम मरियमु, नाम के ऊपर अलिफ लाम नहीं लगाते, ठीक है, जी तो वो पहले ही मार्फा होता है ना। चलिए नेक्स्ट कौन आएगा? नजर आ रही है मुझे मिशल, मिशल आप आएंगी? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। आप आगे पढ़ेंगी या उसी को रिपीट करेंगे? ट्राई करेंगे आगे ये वाला? जी करें, चलो पढ़िए। क्या हो गया मिशल? माइक म्यूट हो गया आपका। मुनीबा आप आएंगी? जी पढ़ना चाहेंगी? जी चलिए पढ़िए। मैं तिलका ये वो क्या है? तिलका बैदतुन वो अंडा है। هذه سيارة المدرس وتلك سيارة المدير. This is the teacher's car وتلك سيارة المدير and that is the principal's car. ठीक है। सयारतुल मुदर्रिसी एंड सयारतुल मुदीरी कौन से मुरक्कब बन रहे हैं? मरकब इजाफी इजाफी बन रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। सयारतुल मुदर्रिसी, जब ये वाली कॉम्बिनेशन होगी ना, इस कॉम्बिनेशन में मुरक्कब इजाफी बनेगा। यहाँ पे अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, और यहाँ पे कसरा है, इसको पहचाने और इसको भी पहचाने। ये इस पे भी अलिफ लाम नहीं है और इस पे भी तनवीन भी नहीं है और इसके नीचे कसरा है, ये मजरूर है, इसके नीचे ज़ेर आ रहा है। अच्छा, इसमें तिलका बैतुन का क्या है? ये क्या ये आप इसको मुरक्कब इशारी कह सकते हैं? जी जुमला इसमें अभी कह सकते हैं। दोनों तो नहीं बन सकते ना, एक बनेगा ना। मुरक्कब इशारी कह सकते हैं इसको? नहीं क्योंकि मुरक्कब फुल सेंटेंस नहीं होता। हाँ, ये फुल सेंटेंस है। मुरक्कब नाकिस जो होता है वो फुल सेंटेंस नहीं होता। तिलकल बैदतु होता तो वो क्या होता? वो नाकिस होता। ये है आपका तिलका बैदतुन, तो ये आपका मुब्तदा बनेगा। जी क्योंकि वो मारिफा है और बैदतुन नकिरा है। हाँ, नकिरा है। मारिफा और नकरा की कॉम्बिनेशन जब होती है तो वो जुमला बन जाता है, जुमला इस्मिया बन जाता है। अच्छा जी, तिल का क्या है? डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या ये हाँ, कि ये मार्फा होते हैं? जी मार्फा होता है तिल जी का? मारिफा शुजा। हाँ, इसमें इशारा जो होते हैं वो मार्फा होते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया था ना, चार चीजें बताई थी ना, उसमें इसमें इशारा भी और जमायर भी। अभी जमायर तो यहाँ पे कोई नहीं आ रहे जो मैं आपको दिखाऊं, लेकिन जमायर भी क्या होते हैं? वो भी आपके मार्फा होते हैं, वो भी मुब्तदा बन के आ सकते हैं। इसमें इशारा भी मार्फा होता है, वो भी मुब्तदा बन के आ सकता है। कोई नेम होगा तो वो भी मुब्तदा बन के आ सकता है, कोई भी नेम, एनी, बॉय का हो, गर्ल का हो, किसी का भी हो। अच्छा, इसी तरह चौथी चीज कौन सी बन सकती है? एक चीज मैंने मिस की है, अलम बन सकता है, मुब्तदा, किसी का भी नाम होगा वो बन जाएगा, और इसम इशारा बन जाएगा, इसम ज़मीर बन जाएगी, ठीक है। ये भी इसम ज़मीर भी मुब्तदा बन सकती है, हुआ, हुमा, हुम। एक चीज मैंने मिस की है, मारिफ बिल्लाम। मारिफ बिल्लाम इसम ज़मीर जो है ये भी आपका मुब्तदा बन सकता है, और मारिफ बिल्लाम इसम। अगर ये बोलना मुश्किल लग रहा है ना, तो इसको हम कह सकते हैं कि आपका क्या कहेंगे इसको, कि अलिफ लाम वाला इसम, वो नाउन जिसके ऊपर अलिफ लाम आया, जैसे ये है ना अल-मुदीर। अब ये जो है वो, लेकिन इनका शुरू में आना जरूरी है। अगर मैं शुरू में आएंगे, जुमले के शुरू में आएंगे, तो ही ये क्या बनेंगे? आपके मुब्तदा बनेंगे। अगर इस तरह का कोई नाउन शुरू में आ जाए तो फिर उसको क्या बनाएंगे? मुब्तदा बनाएंगे? नहीं, मुब्तदा नहीं बनाएंगे उसको। अगर इसको मुब्तदा बना देंगे तो इसको क्या बनाएंगे? ये खबर मुकद्दम बना देंगे। इसको खबर मुकद्दम बनाएंगे। जितने भी आपके आएंगे ना अस्मा इस्तफाम, उनको खबर मुकद्दम बनाएंगे, ठीक है। और जो आपका आगे होगा वो आपका क्या बन जाएगा? फिर मुब्तदा बन जाएगा। जरा ये खबर बन गई तो उसके बाद मुब्तदा ही आएगा ना, है ना। अब इसकी जहां जहां मिसालें आएंगी आप देखना
کہ جہاں پہ کوئی بھی آتا ہے، اینا آتا ہے، اینا حامدن. اب اینا کو بھی اگر آپ مبتدا بنا دیتے ہیں، فرض کریں کہ یہ، تو پھر حامد کو کیا بنائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کو کیا بنانا ہے، جو کوشچن میں آ رہے ہیں ان کو آپ نے، یہ نکرہ کی فارم میں ہوتے ہیں، یہ سب نکرہ ہوتے ہیں، ان کا اعراب نکرہ یہ ہوتے ہیں، معرفہ نہیں ہوتے، وسط میں نکرہ ہوتے ہیں، اور یہ کیا بنتے ہیں پھر خبر نکرہ ہوتی ہے نا، تو یہ خبر بنتے ہیں، اور یہ معرفہ ہوتے ہیں تو یہ مبتدا بن گئے. تو یہ جن کو سمجھ آ رہی وہ سمجھ لیں، جن کو نہیں آ رہی بالکل نہ ہو، اپنے دماغ پہ زور دیں. ٹھیک ہے، صرف یہ جان لیں کہ یہ آپ کا اسم اشارہ ہے. اچھا جی، کون پڑھ رہا تھا ابھی؟ جی میں. آپ پڑھی تھی نا، چلیے پڑھیے تھوڑا سا. الساعة جی الساعة عباس هذه is this Abbas's watch? ٹھیک ہے. لا هذه ساعة حامد. No, this is Hamid's watch. تلك ساعة عباس. That is Abbas's watch. هذه کا مطلب this اور تلکا کا مطلب that. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ اردو میں کیا کہیں گے، اردو میں اس کو یہ کہیں گے اور تلکا کو وہ کہیں گے. حالانکہ وہ کے لیے ضمائر یوز ہوتے ہیں نا، ہوا ہیا یوز ہوتا ہے، لیکن اب اردو میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سے ہی شو کی جاتی ہیں، تو اس میں اسم اشارہ بھی جو ہے وہ سے ہی شو ہوتا ہے. خاص طور پہ جو دور کا اشارہ ہوتا ہے وہ کے لیے ہوتا ہے اور یہ کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ مؤنث کا، یہ مذکر کا ہے؟ مؤنث کا ہے. مؤنث کا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ تلکا ہے اور اس کے بعد میں ساعتو ہے. ساعتو مؤنث ہے. کیونکہ خبر جو آ رہی ہے نا، آپ کی خبر جو آ رہی ہے اس کے آگے، وہ آپ کی کیا آ رہی ہے، وہ آپ کی مؤنث آ رہی ہے، اس لیے یہ بھی تلکا مؤنث آئے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھ کے آپ نے اشارہ لگانا ہے. پہلے آپ نے مشارہ لے کو دیکھنا ہوتا ہے، پھر آپ اشارہ لگاتے ہیں. ایسے ہی اشارہ نہیں لگاتے. ابھی فل ان دی بلینکس آئیں گے نا، پہلے مشارہ لے کو دیکھیں گے، وہ آپ کا کیا ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، جمع ہے، پھر اس کو دیکھ کے آپ اشارہ لگائیں گے. کیونکہ اشارے بھی واحد کے ہوتے ہیں اور جمع کے ہوتے ہیں، مذکر کے ہوتے ہیں، مؤنث کے ہوتے ہیں. اچھا، ساعۃ عباس، اس میں مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ تلکا مبتدا ہے، ساعۃ عباس مرکب اضافی بن کے خبر بن رہی ہے. آگے چلیے. ذلك ديك وتلك دجاجة. That is a cock and that is a hen. اچھا، یہاں پہ ذالکا کیوں آیا ہے اور یہاں پہ تلکا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ ذالکا مذکر ہے اور تلکا مؤنث ہے. نہیں، why ذالکا not تلکا ہی ہے؟ کیونکہ دیکن مذکر ہے. اور یہاں پہ تلکا کیوں آیا ہے؟ دجاجتن مؤنث ہے. اسی طرح بتتن، اس کے ساتھ بھی تلکا آئے گا. ٹھیک ہے، اور باقی چیزیں جو مذکر ہیں ان کے ساتھ. سیارتن، اب دیکھیں یہ قریب کا اشارہ بھی. اشارے جو ہیں، ایک اشارہ ہوتا ہے دور کا، فار، اور ایک نیئر قریب کا ہوتا ہے، ایک قریب کا ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہے پھر کہ جو دور کا ہوتا ہے وہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، اور مذکر و مؤنث کا. اور جو قریب کا ہوتا ہے وہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، مذکر و مؤنث کا ہوتا ہے. اشارہ قریب اور اشارہ بعید. اشارہ اسم و اشارہ، کیونکہ یہ نون ہے، اسم لکھا جاتا ہے، اس لیے اس کو اسم کی کیٹیگری میں ڈالیں گے. نمبر 1. نمبر 2، اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. بتائیے کون سی ٹائپس ہوتی ہیں؟ قریب، اشارہ قریب اور اشارہ بعید. بعید کا مطلب ہوتا ہے دور. آپ کو یہ ورڈ پتہ ہے، پڑھے ہوئے آپ نے. اشارہ قریب، اشارہ بعید. اب اس کی بھی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. کیا مذکر مؤنث. مذکر مؤنث میں مذکر میں کیا ہوگا؟ قریب میں ھذا، اور یہاں پہ قریب میں ھذہ. جب کوئی چیز مؤنث ہوگی تو ھذہ لگائیں گے، جب کوئی چیز مذکر ہوگی تو ھذا لگائیں گے. بعید میں بھی اسی طرح 2 طرح سے کریں گے. کون کون سے اشارے ہوں گے 2 طرح کے بعید کے لیے، دور کے لیے؟ ذالکا اور تلکا. ذالکا اور تلکا. عائشہ کو یہ بات سمجھ آئیے؟ عائشہ خان، ذالکا اور تلکا آئیے سمجھ؟
عائشہ چلے. فرزانہ آپ نے مائک لیا, آپ نے پڑھ لیا تھا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نہیں میں نے پڑھا نہیں تھا. اچھا آپ کو سمجھ آ گئی فرزانہ جو میں نے بتایا؟ جی 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 بالکل بالکل اچھی طرح آ گیا نا. بہت اچھا ہاں. اور جو اوپر چیزیں میں نے بتائی تھی شروع میں, بالکل یہ والی 4 حالتیں یہ اپنی کاپی میں لکھنی ہے. اعراب ہوتا ہے, جنڈر ہوتا ہے, عدد ہوتا ہے, وسعت ہوتا ہے. انگلش میں بھی لکھیں, ٹھیک ہے؟ جی 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 بالکل. اعراب پوزیشن ہوتا ہے, حالت ہوتا ہے, جنس جو ہوتا ہے وہ جنڈر ہوتا ہے. جنڈر کا مطلب مذکر مؤنث. عدد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عدد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب واحد ہے, واحد یا جمع ہے. ابھی آپ کو مثنیٰ نہیں پڑھایا گیا, واحد اور جمع. اور ویسے تو مثنیٰ بھی ہوتا ہے, واحد مثنیٰ اور جمع. اگر یاد کر لیں, اگر آپ کو پتہ ہے پہلے سے تو ٹھیک ہے. وسعت میں کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے, نکرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی جی بالکل. چلیے صحیح ہے. جزاک. آپ پڑھیں گی نا فرزانہ آگے تھوڑا؟ جی میں پڑھوں. جی جی جی. تمارین اقرا و وقتب. پہلا ہے حاضی مدرسۃن و تلک جامعۃن. یہ اسکول ہے اور وہ یونیورسٹی. سوری میں روک رہی ہوں آپ کو. تمارین نو ہے, اس پہ 2 پیش کیوں؟ 2 پیش کیوں نہیں ہے اس کے اوپر؟ کیوں نہیں ہے 2 پیش اس کے اوپر؟ نون کے اوپر تو 2 پیش تنوین آتی ہے یا الف لام آتا ہے نا, تو اس پر ایک ہی پیش آ رہی ہے. یا تو یہ واحد نہیں ہے, ایکسرسائزز لکھا ہوا ہے کہ ہاں جمع ہی ہے نا, جمع ہے, جمع ہے اس لیے. لیکن جمع تو اقلام بھی ہو سکتا ہے نا. جی جی اقلام پہ تو تنوین آتی ہے نا, اور بھی جتنے رجال جو بھی آپ بولیں گے تنوین آتی ہے. اس پہ تنوین نہیں آ رہی. ہاں یہ تو ہے. ہاں یہ ہے تو جمع ہی, آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. لیکن یہ ابھی آپ نے ذہن میں یہ ذہن اپنا بنانا ہے کہ کچھ اسماء ایسے بھی ہوں گے جن کے اوپر ایک ہی پیش آئے گی. جی جی. ایک پیش کس وجہ سے آتی ہے؟ وہ الف لام کی وجہ سے آتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا, الکتاب نہیں ہوتا, الکتاب ہوتا ہے نا, یہ پتہ ہے نا آپ کو؟ اچھا جی, یہ ایک تو ریزن یہ ہو گئی. دوسری کوئی ریزن بتائیں جو ایک پیش لائیں. مضاف, اگر مضاف ہے. ہاں مضاف ہے, وہ بھی ایک ریزن ہے. مضاف ہوگا تو آپ اس پہ تنوین نہیں لا سکتے, ٹھیک ہے. تیسری ریزن کیا ہوگی؟ اگر غیر منصرف ہے. غیر منصرف ہے, اگر وہ مؤنث ہے. نہیں مؤنث, ہاں وہ اسی میں آ جائے گا. غیر منصرف میں جو میں لکھ رہی ہوں نا, وہ سب اسی میں آ جائیں گے. یہ جو اوپر تمارین لکھا ہوا ہے نا, یہ بھی غیر منصرف ہی ہے, اس لیے اس کے اوپر ایک پیش آ رہی ہے. یہ جو اس پر ایک پیش آ رہی ہے نا, یہ بھی غیر منصرف ہے جی. اس کے اوپر ہم لگا ہی نہیں سکتے, اور اس کے پیچھے ریزن بھی ہے, ٹھیک ہے. ابھی آپ صرف یہ یاد رکھیں کہ جب ایک ضمہ آئے گا اور وہ مضاف بھی نہیں ہوگا اور وہ الف لام کی وجہ سے بھی ایک پیش نہیں آ رہا ہوگا, تو پھر وہ غیر منصرف ہوگا. غیر منصرف ہوگا. کوئی ریزن اور نہیں ہے نا, یہ والی 2 ریزن میں سے نہیں ہے نا, تو پھر یہ ریزن ہوگی تیسری والی. تو ابھی میں پوچھوں گی کہ مریم منہ پہ کیوں آ رہا ہے ایک پیش, اسامہ پہ ایک پیش کیوں آ رہا ہے, اسامہ تو یہ سب غیر منصرف ہیں. اسامہ میں, اور ان کے پیچھے ریزن بھی ہوتی ہے. ریزن میں آہستہ آہستہ آپ کو بتاؤں گی. ابھی صرف آپ غیر منصرف کو یاد کریں گی. جن پہ تنوین آتی ہے, مدرستن, 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 یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ آپ کے منصرف ہوتے ہیں, منصرف, اور یہ غیر منصرف, ٹھیک ہے. منصرف ہوتے ہیں جو فلی ڈکلائن ہو جاتے ہیں, یعنی دن, 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 تینوں طرح کا اعراب آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. حامدن, 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 دن, دن, دن تینوں کر رہے ہیں. لیکن یہ والے جو ہوتے ہیں ان پہ آپ کا کسرہ نہیں آ سکتا. پھر تمارینو, تمارینا, تمارینا ہی ہوگا, ٹھیک ہے. تو جو غیر منصرف ہوتے ہیں ان کے نیچے, ان کے اوپر تنوین بھی نہیں آئے گی, ان کے نیچے زیر بھی نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. تو چونکہ آپ کو یہ چیزیں پتہ ہے, اس لیے تھوڑا سا میں فردر اس میں ایڈ کر رہی ہوں تاکہ ہم آگے چلیں. تو یہ اس کے پیچھے بھی ریزن ہے, لیکن ریزن میں ابھی نہیں بتا رہی. ابھی میں صرف آپ سے پوچھوں گی کہ یہ کیوں اس کے اوپر ایک ضمہ آ رہا ہے. اگر الف لام ہوگا تو آپ بتا دیں گی کہ اچھا التمارین لکھا ہوا تو الف لام کی وجہ سے ایک ضمہ آ رہا ہے. مضاف بنے گا تو آپ کہیں گے مضاف کی وجہ سے آ رہا ہے. اگر وہ دونوں ریزن نہیں ہے تو پھر غیر منصرف ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ایک ریزن اور بھی ہوتی ہے نمبر 4, وہ کون بتائے گا جب ایک ضمہ آتا ہے؟ ایک ریزن اور بھی ہوتی ہے جو آپ نے پہلے بتایا تھا کہ
اگر غیر عرب نام ہے یعنی کہ مردوں کے غیر عرب نام ہیں ہاں وہ آدم ہوں تو وہ اسی کیٹیگری میں آ جائے گا نا سب کچھ. یہ کیٹیگری جو آپ کی ہے نا غیر منصرف اسی میں سارے آ غیر جائیں منصرف جی ہے نا. جن مردوں کے آخر میں الف نون اور نام کے وہ بھی سلمان نون نہیں ہوتا سلمان نو ہوتا ہے. سلیمان نو یوسف ہو ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ سب اسی میں آئیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ان کے اوپر نہ الف لام آ رہا نہ یہ مضاف بن رہے ہیں. تو یہ اس کا ایک اور ہے جو کہ جسے ہم کہتے ہیں منادا. منادا جب آپ بناتے ہیں نا تو ولدن جب ہوتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے ولدن یا لگانے سے. ہاں تو یا ولد. ہاں تو منادا جو ہوتا ہے منادا مفرد جب ہوتا ہے نا ایک منادا ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے. عبداللہ کیا اب 2 ورڈ عبد الرحمن یہ نام رکھتے ہیں نا ہم 2 ورڈ ملا کے ہے نا. عبد الکریم بہت سارے لوگ ایسی طرح کے نام رکھتے ہیں مرکب رکھتے ہیں. لیکن کچھ جو ہوتے ہیں وہ حامد ہوتے ہیں صرف ٹھیک ہے. زید ہوتا ہے تو وہ جب ہوگا تو اس کے اوپر کیا ہوگا جب یا آئے گا تو وہ پھر آپ ولدن نہیں کہہ سکتے آپ کیا کہیں گے یا ولدن کہیں گے. اچھا تو یہ بھی ایک ریزن ہے ایک پیش آنے کی. تو اگر یہ والی ریزن ہوگی تو آپ مجھے یہ والی ریزن بتائیں گے. یہ والی ریزن ہوگی تو یہ والی ہوگی تو یہ اور یہ والی ہوگی تو یہ 4 ہی ریزن ہے ٹھیک ہے. 4 ہی ریزن ہے بس. یہ ایک ریزن ہے یہ اور ایک یہ اور باقی سارے اس میں آ جائیں گے. باقی سارے کس میں آ جائیں گے غیر منصرف میں آ جائیں گے. تو ابھی میں تمارین کو کس میں ڈالوں غیر منصرف میں ڈالوں ٹھیک ہے. صحیح اس کے پیچھے ریزن ہے لیکن ریزن میں آہستہ آہستہ بتاؤں گی. بالکل صحیح ٹھیک ہے. ابھی آپ صرف اس کو کیوں کہہ رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک دمہ آ رہا ہے بغیر کسی ریزن کے ایک دمہ آ رہا ہے. ریزن تو ہے بیہائنڈ لیکن وہ یہ والی ریزن نہیں ہے. الکتاب مضاف یہ والی ریزن نہیں ہے اور منادا والی بھی نہیں ہے. منادا مفرد والی بھی ریزن نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ غیر منصرف کی ریزن ہے ٹھیک ہے. ابھی آپ اس کو غیر منصرف کی ریزن ہی کہیں گے ٹھیک ہے. پھر آہستہ آہستہ میں بتا. اچھا اب آپ پڑھیے اقرا وقتب. اقرا کیا ہے؟ اٹس اے ناؤن اور ورب. اٹس اے ورب. اٹس اے ورب. اور وقتب بھی وہ بھی ورب ہیں ٹھیک ہے. دونوں ورب فعل ہیں یہ. اچھا فعل ہیں یہ اور اس کے اندر اچھا کیسے پہچانا کہ یہ فعل ہے؟ ناؤن کیوں نہیں کہہ سکتے ان کو؟ کوئی ایسی بات جس سے آپ کو پتہ لگا ہو کہ یہ فعل ہے؟ اس میں جو ناؤن کی جو وہ ہے نہ ال لگا ہے اس میں نہ تنوین ہے. بالکل بالکل. تنوین بھی نہیں ہے اور ال بھی نہیں ہے ٹھیک ہے. جب 2 چیزیں نہ ہوں یہ 2 ریزن نہ پائے جائیں تو وہ آپ کا چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ تو حرف ہوتے ہیں نا ان کو تو آپ واو اور لا اور اس طرح سے آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ آپ کے ورب ہے. یہ تو حرف کی کیٹیگری میں آتے ہیں. بٹ یہ والے کس میں آئیں گے؟ یہ آپ کے ناؤن کی کیٹیگری سے نکل کے فعل کی کیٹیگری میں چل جائیں گے. یہ جو واو ہے نا بیچ میں یہ جو واو ہے یہ حرف ہے ٹھیک ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں شاید میں نے آپ کی کلاس میں بتائی ہیں یعنی اسم فعل اور حرف جی ٹھیک ہے نا. یہ 3 کوئی بھی لفظ یہاں سے میں اٹھاؤں گی تو وہ ان 3 میں سے ایک ہوگا ٹھیک ہے. 3 میں سے ایک ہوگا. اچھا جیسے حاضر ہی ہے تو اس کو میں کہاں ڈالوں؟ اسم میں ڈالوں فعل میں ڈالوں حرف میں ڈالوں؟ حاضر ہی حرف میں نہیں حاضر ہی اسم و اشارہ ہوتا ہے نا. ہاں اسم اشارہ اسم ہی کہلائے گا. ہاں تو پھر اسم کہلائے گا نا ٹھیک ہے. یہاں پہ ڈالیں گے ٹھیک ہے. اچھا اور اقرا کو کہاں ڈالوں؟ نام بھی رکھتے ہیں آپ لوگ اقرا فعل میں آ جائے گا. ہاں اقرا فعل آپ لوگ نام رکھ دیتے ہیں. اقرا پڑھیے ریڈ. جی آئی ڈونٹ نو کیوں رکھتے ہیں. تو یہاں پر اقرا فعل کی کیٹیگری میں آئے گا اور حرف جو ہے وہ آپ کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. وہ یہاں آ جائے گا اور اقرا یہاں آ جائے گا اور اکتب بھی یہیں پر آئے گا ٹھیک ہے. جی صحیح ہے. اچھا اس کے بعد آپ سمجھ نہیں ہوتی نا لوگوں کو تو لوگ پھر جو بھی دیکھتے ہیں وہ سوچتے نہیں کہ یہ ورب ہے یا کیا ہے وہ رکھ لیتے ہیں. تو جب آپ نالج لیں گے. ٹیچر آپ نے ورب کی کیا نشانی بتائے؟ 2 آپ نے کچھ بولا تھا. ہاں یہاں انہوں نے بتائی ہے نا. انہوں نے کہا ہے کہ یا تو تنوین آتی ہے یا پھر الف لام آتا ہے ناؤن پہ ٹھیک ہے. جی جو ورب ہوتا ہے اس پہ یہ دونوں چیزیں نہیں آتی
नून भी, तनवीन भी नहीं आती और अलिफ लाम भी नहीं आता। किसी भी वर्ड को आप उठा के देखेंगे कुरान मजीद में तो उस पे अलिफ लाम और तनवीन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो जब अलिफ लाम और तनवीन आ जाएगा तो वो इस्म की कैटेगरी में चला जाएगा, जब नहीं आएगा तो वो यहाँ आ जाएगा। और हर्फ तो छोटे छोटे होते हैं। तिलका को कहाँ डालेंगे आप जो पढ़ रही हैं सिस्टर फरजाना? जी जी, हाँ, तिलका जो है वो भी इसमें इशारा में आ जाएगा, वो भी यहाँ आएगा, दूर का इशारा वो भी यहीं आएगा। ठीक है, उसको भी इसमु इशारा होता है ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है ना, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो होते हैं वो भी इसम की कैटेगरी में आते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी उसी, ठीक है, इसी में आते हैं। तो बाकी तनवीन वाले और अलिफ लाम वाले तो आएंगे ना, जैसे मुदरिसतुन को कहाँ डालेंगे अभी, मदरसतुन को कहाँ डालेंगे? तो इसम में आ जाएगा, ये इसम में आएगा तनवीन। और जामियतुन ये भी उसमें आएगा, इसम में आएगा। तो अभी आपने पहचानना है, सबसे पहले अपने आप से सवाल करना है कोई भी वर्ड देके कि ये नाउन है, हर्फ है या वर्ब है, सही, यानी इसमें फेल है या हर्फ है। अपने आप से ये सवाल, पहला सवाल आप लोगों ने करना है, पहचानना है उसको, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसी तरह से ये वाला जुमला भी है, अब मीनिंग आपको आते ही होंगे। जी, ये है जालिका हिमारुन व तिलका बकरतुन, वो गधा है और वो गाय है, सॉरी जालिका, हाँ वो गधा है और वो गाय है। हाँ, दोनों दूर हैं, दोनों दूर हैं और दोनों के साथ इशारा जालिका है, इशारा बैद, इसके साथ तिलका आ रहा है, इसके साथ जालिका है। जी बिल्कुल। तो अभी आगे हम एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आपको पता होना चाहिए। बकरा तो इसको बकरा ना पढ़ा करें, बकरा ना पढ़े इसको कभी भी, बकरा बकरा एकदम आदत डालने वरना गलत होगा। अच्छा आगे पढ़िए। अज़ालिका मस्जिदुन ला तिलका मदरसतुन, क्या वो मस्जिद है? नहीं वो स्कूल है। तो दूर के इशारे के लिए वो यूज होता है उर्दू में, ठीक है जी। वो चाहे मुज़क्कर के इशारा हो चाहे मुन्नस के हो, वो यूज होता है उर्दू में। और हाजा और हाजी के लिए ये यूज होता है, ये और वो। चलिए ठीक है आगे। हाजा जमालुन व तिलका नाक़तुन, ये ऊंट है जी, जमालुन ये ऊंट है और वो ऊंटनी है, शी कैमल, ठीक है। तिलका वो, अच्छा, और यहाँ पे तिलका क्यों आया आपको पता है, ये मुअन्नस है, ठीक है। और हाजा क्यों आया, ये जमल ऊंट है, मुज़क्कर। आगे हाज़िही मुदर्रिसतुन व तिलका तालिबतुन, ये टीचर है और वो तालिब इल्म है, तालिबा है। ये मुदर्रिसुन से बना हुआ है, मुदर्रिसुन में जब आप गोल ता लगाते तो मुदर्रिसतुन बन जाता है। और इससे मिलता जुलता यहाँ पर एक और लफ्ज आया, कौन सा आया मुदर्रिसतुन से मिलता जुलता? मदरसतुन। हाँ बिल्कुल, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। ये मद है मदरसतुन जी, और ये मुदर्रिसुन से बना हुआ है ना जी। और इसका कोई, ये तो होता ही मुअन्नस, इसका कोई मुज़क्कर नहीं होता, मदरसा का कोई मुज़क्कर नहीं होता। हाँ बिल्कुल, वो तो चीज है। हाँ वो तो इस मदरसा स्कूल को कहते हैं ना मदरसा। और मुदर्रिसुन और मुदर्रिसतुन ये मैस्कुलिन फेमिनाइन, ठीक है, मुज़क्कर और मुअन्नस। अच्छा जी, हो गया। तालिबुन और तालिबतुन जी। इशारे कौन से आ रहे हैं? दोनों के साथ मुअन्नस के आ रहे हैं, क्योंकि दोनों के साथ गोल ता लगी है। अच्छा, क्या सिर्फ गोल ता वाला नाउन जो होता है वो मुअन्नस होता है? नहीं, अलिफ हमजा का भी होता है इनमें। अलिफ हमजा, अलिफ हमजा तो नहीं होता, बस ये बाज नाम ऐसे होते हैं जिनके मुअन्नस के नाम के उनके ऊपर पेश होता है, बल्कि सारी मुअन्नस के नामों के ऊपर पेश होता है। नहीं, मेरा सवाल बहुत सिंपल सा था कि सिर्फ मुअन्नस के लिए सिर्फ गोल ता होना काफी है या गोल ता के बगैर भी कोई मुअन्नस आ सकता है? नो जी, उसके बगैर आ सकता है। उज़्मा उसके ऊपर खाली अलिफ आती है। उज़्मा है, ये तो औरतों के नाम है, जाहिर है मुअन्नस ही होंगे ना, है ना।
अच्छा मेरा मतलब ये था कि जैसे बिनतुन उख्तुन है तो उस पे तो गोलता नहीं आती ना, ओपन ता आ रही है, तो उख्तुन, हाँ अब ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? गोलता नहीं आ रही, इनके ऊपर गोलता नहीं आ रही, तो फिर क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है? ये मुअन्नस है। इनके साथ इशारा कौन सा लगेगा? मुअन्नस का इशारा लगेगा जी, हाज़िही या तिलका। हाँ, तिलका या हाज़ी, ठीक है, वेरी गुड। आगे चलिए नंबर 6। हाज़ा कल्बुन व ज़ालिका क़ित्तुन। ये कुत्ता है और ये बिल्ली है। नो सॉरी, वो बिल्ली है। वो बिल्ला है। वो बिल्ला है। हाँ, अगर ये बिल्ली होती तो तिलका होता ना। हाँ, तिलका होता, सही है ना, बिल्ला है। तो जी, ये मुज़क्कर है इसलिए ज़ालिका आया है। सही, यही तो आपने पहचानना है ना। अगर बिल्ली होती, चलें फर्ज करें कि इसको उर्दू में बिल्ली कहते हैं और अरबी में इसको कितुन कहते हैं, ठीक है, हाँ, लेकिन इशारे से पता फिर भी आपने इसको मुज़क्कर ही समझना है और उर्दू में इसका तर्जुमा बिल्ली कर देना है, अपनी जुबान में बिल्ली कर देना है, ठीक है। जी, ठीक है, वो बिल्ली है, लेकिन उसको समझना मुज़क्कर ही है कि कितुन जो है मुज़क्कर है, क्योंकि इसके साथ इशारा मुज़क्कर आया ना। करके सही, बिल्कुल। अरबी जुबान में कितुन क्या है, मुज़क्कर है। जैसे और भी लफ्ज होते हैं, सूरज जो है अरबों में मुअन्नस होता है, सूरज, और हमारे यहाँ सूरज क्या होता है जी, मुज़क्कर होता है ना, मुज़क्कर होता है। तो ये हर जुबान का अपना अपना होता है। जब अपनी जुबान में आप तर्जुमा करेंगे तो सूरज निकला करेंगे, अरबी में जो होगा वो सूरज निकली है, वो मुअन्नस है उनके लिए। ये फर्क है। तो हर जुबान के अपने अपने होते हैं। जब अपनी जुबान में ट्रांसलेट करेंगे तो फिर उसको बिल्ली ही आप करेंगे, लेकिन अरबी में केतुन बिल्ले को, मेल को कहते हैं, ये मेल होता है, तभी तो मेल का इशारा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जमालुन है, ऐसे ही है ये भी, ठीक है, केतुन भी। अच्छा, आगे तो बस आखिरी एक है, बैतुल मुवज़्ज़िन। नहीं, मुअज़्ज़िन क्या होता है? मुअज़्ज़िनुन। हाँ, मुअज़्ज़िन है। मुअज़्ज़िन ये तो बोलना आना चाहिए ना। नहीं, बस मुझे दिखने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी। अच्छा, वो आपको तशदीद के नीचे कसरा है ना। जी, तो मुअज़्ज़िन हो जाएगा, अज़्ज़िन, जी, मुवज़्ज़िन। हाज़ा बैतुल मुवज़्ज़िन व तिलका हदीक़तुत ताजिरिन। ये मुअज़्ज़िन का घर है और वो ताजिर का बाग है। मुनीबा, इसको कैसे पढ़ेंगे? पढ़ के बताएं इनको। अल-मुअज़्ज़िनु, ये कह रही है मुवज़्ज़िनुन, मुवज़्ज़िनु कह रही है ना, अल-मुवज़्ज़िनी, मुवज़्ज़िनी नीचे ज़ेर नहीं, जी वो वाव को नहीं पढ़ते, वो उसके ऊपर का हमजा को पढ़ते हैं। देखा, ये हमजा जो होता है ना, ये चेयर पे बैठता है, कभी कभी बगैर चेयर के भी होता है, लेकिन चेयर पे बैठता है हमेशा। अलिफ की चेयर पे बैठता है, वाव की चेयर पे बैठता है और या की चेयर पे बैठता है। उस वक्त अलिफ और वाव और या की कोई हैसियत नहीं होती। जी, सही। उसको नहीं पढ़ा जाता, सिर्फ हमजा को पढ़ा जाता। तो ये हो जाएगा मुअज़्ज़िनुन, अल मुअज़्ज़िनी हो जाएगा, क्योंकि बैतुल मुअज़्ज़िनी क्या बन रहा है? बैतुल मुअज़्ज़िनी क्या बन रहा है? कौन सा मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी बन रहा है। आपको पता है फरजाना, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है? जी, मैं मुअज़्ज़िन का घर तो का आ गया इसमें। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है ना। तो मुवज़्ज़न नहीं पढ़ेंगी, मुअज़्ज़िन इसको हमजा को पढ़ेंगी, ठीक है, वेरी गुड मुनीबा। व तिलका हदीक़तुल, आगे व तिलका हदीक़तुत ताजिरी, और वो ताजिर का बाग है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, तिलका हदीक़तुत ताजिरी? ये भी मुरक्कब इज़ाफ़ी, ये वाला मुरक्कब इज़ाफ़ी, जी। अच्छा, और ये पूरा जुमला है, कौन सा जुमला है? जुमला ये इशारी नहीं, जुमला इशारी कुछ नहीं होता, जुमला इस्मिया होता है और जुमला फेलिया होता है, जुमला इशारिया कुछ नहीं होता। जुमला इस्मिया हो गया, मुरक्कब इशारी होता है।
ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا پورا جملہ ہے. ٹھیک ہے. وہ تاجر کا باغ ہے. ٹھیک ہے نا, وہ تاجر کا باغ ہے. اب یہ جس میں ہے لگ جاتا ہے وہ پورا کمپلیٹ جملہ بن جاتا ہے, اور ناؤن سے شروع ہو تو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور فعل سے شروع ہو تو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. تو نیکسٹ ٹائم آپ نے جملہ اشاریہ نہیں بولنا اگر شروع میں اشارہ آ رہا ہے تو. صحیح. یہ مبتدا ہے, یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کی حدیث کا تو تاجری خبر بن گئی. ٹھیک ہے. باقی کلاس کو بھی غور سے سنیے, میں پوچھتی رہوں گی یہ کوشچن تاکہ آپ کے نا پکے ہو جائیں یہاں پہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. کوئی کوشچن ہے تو کر لیں, ابھی کوئی ڈاؤٹ ہے یعنی کوئی ڈاؤٹ؟ ابھی نہیں ہے نا. تو جب بھی ڈاؤٹ ہو ہوم ورک کرتے ہوئے کچھ بھی کوئی سمجھ نہ آئے اس کو نوٹ کیا کریں, کلاس میں پوچھا کریں. ٹھیک ہے. اور پرائیویٹ میسج کر کے بھی مجھے پوچھ سکتے ہیں, اسی وقت بھی پوچھ سکتے ہیں, بعد میں بھول جاتا ہے بندہ. تو کوئی بھی کہ مجھے یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے یہاں پہ, میں جیسے ابھی یہاں پہ یہ والا ترجمے کا ہی آ گیا تھا, تو دیکھنے میں تو وہ بلّا ہے نا, لیکن جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو آپ کیا کریں گی؟ بلی کریں گے. کتن بلی کو کہتے ہیں ہماری زبان میں. عربی میں وہ مذکر ہوتا ہے, جو بھی بلی ان کے یہاں ہوتی ہے مذکر ہوتا ہے. تو اس کو اپنی زبان میں بلا نہیں بلی لکھنا ہے, وہ بلی ہے. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں اشارے لگانے. آ گئی ہیں جی میڈم کوئی. ان کو تنگ کر کے کیا ملتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی, ضائع کرواتے ہیں میرا. چلیں پڑھنا شروع کریں. کون آ رہا ہے ابھی؟ فہمیدہ آپ آ جائیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے یہاں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشر الی الکلمات الآتیاتی باسم اشارۃ للقریبی ھذا و ھذہ. Fill in the blanks in each of the following sentences with ھذا اور ھذہ. چلیں شروع کرتے ہیں, پڑھیں. ھذہ ام, ھذا قلم, ھذہ ملقۃ, ھذہ عین, ھذا حجر, ھذا قمیص, ھذہ قدر, ھذہ نافذات. نافذہ نہیں سسٹر, نافذہ نہیں ہے, نفذت. جلدی سے گزرنا ہوتا ہے. ھذا بقرۃ, جی ھذا بقرۃ, ھذا مکتب. یہ اردو والا بکرا نہیں ہے. سوری جی ھذہ بقرۃ, ھذا مکتب. سسٹر اس کو صحیح پڑھیں, بقرۃن, قاف کو موٹا کریں, بقرۃن, اور ھذہ بقرۃ. لمبا نہیں کرنا. ھذہ بقرۃ, ھذا مکتوب, ھذہ ناقۃ, ھذا سریر. اوپر چھوڑ گئے, یہاں سے پڑھیں. ھذا مہندس, ھذا مہندس, ھذا مؤذن, ھذہ ممرضات, ھذا سریر, ھذہ حدیقۃ, ھذہ طالبات. لیکن سسٹر آپ ایک منٹ رکیں, آپ نے یہاں بھی دا تن کر دیا ہے, یہاں پہ بھی با تن کر دیا ہے. جب آپ با تن کر دیتے ہیں تو آپ الف ایڈ کر دیتے ہیں آگے, با تن. اب یہ کیا بن جاتا ہے؟ اس کو لمبا کریں, تا کو لمبا کریں, اس کو لمبا کریں, اس کے آگے الف ہے, با کو لمبا نہ کریں. ھذا جمل, ھذہ
जबरे ही जेरे हाजे बत्तातुन बत्तातुन। अच्छा माइक म्यूट कीजिए, आपके माइक में शोर आ रहा है। ठीक है, मैं अब किसी और से पढ़ाऊंगी, आपके माइक में शोर आया। अच्छा जी, किसी और को लेते हैं अभी इंशाल्लाह। मिशेल आप आ रही है कि नहीं आ रही? रिजवाना आप, हाँ कौन है? ताहिरा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ताहिरा है? कौन पढ़ जी रहा है? जी ताहिरा खलील बात बोल जी रही हूँ बाजी। पढ़िए। कहाँ से पढ़ने बाजी? यहीं से पढ़ने है, जो पढ़ा है ना उसके मीनिंग भी बताने हैं। अभी आपने पहले मीनिंग नहीं बताया, अब आप मीनिंग भी बताएंगे, ठीक है? और मुझे ये भी बताएंगे कि ये जुमला बन रहा है या मुरक्कब बन रहा है। जुमले और मुरक्कब में फर्क होता है, ठीक है? जुमला जो होता है वो कंप्लीट जुमला होता है, सेंटेंस होता है। मुरक्कब जो होता है वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, ठीक है? जी। तो आपने मुझे बताना है ये कंप्लीट सेंटेंस है या मुरक्कब बन रहा है, जुमला बन रहा है या मुरक्कब बन रहा है। चलिए लगाइए, पहले इसको देख के आपने इशारा लगाना है। जी अच्छा। तो ये उम्मन जो है, उम्मन क्या है? मुज़क्कर है मुअन्नस है? मोनस से माँ को कहते हैं। माँ को कहते हैं। अगर आपको मीनिंग नहीं आएंगे तो आप नहीं पहचान सकेंगे। तो आपको लफ्ज के मीनिंग पहले आएंगे तभी आप पहचानेंगे कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। बस करो आपको मीनिंग नहीं आते तो फिर आप कैसे पहचानेंगे? जी। कुछ लोग इसको अम्मुन बोल देते हैं ना, अम्मुन चचा बोल देते हैं, फर्क ही नहीं करते दोनों में। ये चचा होता है, ये मुज़क्कर होता है, ये उम्मुन होता है, ठीक है? ये अच्छा चलिए अब लगाएं। हाज़िही उम्मुन, ये वालदा है, ये वालदा है, जुमला। जी अच्छा अब मुझे बताइए जुमला है, ठीक है? जुमला ये वाला ना, इस कौन सा जुमला? जुमला तो दो तरह के होते हैं ना, इसमिया भी होता है, इसमिया भी होता है, फेलिया भी होता है। ये जुमला इसमिया है, इसमिया क्योंकि इस्म से शुरू हो रहा है ना। जी। हाज़िही इस्म है, इस्म की कैटेगरी में इसको डालेंगे, हाज़िही। तो ये क्या बनेगा और ये क्या बनेगा? हाजा जो है ये मुब्तदा है, मुब्तदा बनेगा। उम्मुन क्या बनेगा? खबर बनेगी। खबर देखे नकीरा है जी। और हाजा के बारे में बताया था, हाजा हाज़िही जो होते हैं ये मार्फा होते हैं। 4 किस्म के मार्फा मैंने बताए थे ना, उसमें से इस्म इशारा भी मार्फा है। चलिए आगे पढ़ते जाइए। ये आप 4 तरह के जो मार्फा हैं उनके बारे में थोड़ा सा फिर बता दीजिएगा, मैं जरा लेट वो हुई हूं ना इसमें। हाँ कोई बात नहीं, उसमें से एक तो यही है, ठीक है ना? हाँ और एक मार्फा तो वो है जो ट्रेडिशनल होता है, अलिफ लाम वाला, उसके ऊपर अलिफ लाम लगा होता है। और एक मार्फा होता है जो किसी का नाम होता है, वो भी नकरा नहीं होता, चाहे उस पर तनवीन लगी हो, तनवीन लगी होगी फिर भी वो मार्फा ही होगा, ठीक है ना? हामिदुन ज़ैदुन। अब ये तनवीन लगी है, कुछ लोग इसको नकरा कह देते हैं, नकरा नहीं है, ये मार्फा है। नाउन हो और उस पे तनवीन हो तो वो मार्फा होगा, वो मार्फा हुआ। अलीयुन है ना? नाम भी 2 तरह के होते हैं ना, एक तनवीन वाले होते हैं, एक बगैर तनवीन वाले होते हैं। तो जो तनवीन वाले हैं या बगैर तनवीन वाले हैं सब मार्फा हैं, ठीक है? बगैर तनवीन वाले भी मार्फा हैं और तनवीन वाले भी मार्फा हैं। मर्दों के नाम भी मार्फा हैं, औरतों के नाम भी मार्फा हैं, बच्चों के भी, सबके नाम मार्फा हैं। इसको अलम कहते हैं, अलम, ठीक है? अच्छा, और एक मुअर्रफ बिल लाम हो गया, अलिफ लाम वाला, एक अलम हो गया, एक इसम इशारा हो गया, ठीक है? और एक ज़मीर। ज़मीर की मिसाल दें कोई? प्रोनाउन हुआ, हिया, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है? हुन्ना, ये सब जो हैं ये आपके प्रोनाउन भी मार्फा होते हैं। सही। तो ये भी अगर जुमले के शुरू में आ जाएंगे ना, तो हिया उम्मुन, तो ये भी हिया भी मुब्तदा बन जाएगा क्योंकि वो भी मार्फा है। ज़मायर भी मार्फा बन, ये सब मार्फा बन सकते हैं जितने मैंने लिखेंगे। चलिए आगे चल, नंबर 2। हाजा अबुन, ये वाल हैं। हाजा कलमुन, हाजा कलमुन, ये कलम है। हाज़िही मिलअक़तुन, ये चम्मच है। हाजा आइनुन, ये आँख है। ऐनुन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? मुज़क्कर है मुअन्नस है?
मुज़क्कर ही है इसमें, आखिर में गोल ता नहीं आती। हाँ, यही तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि जरूरी नहीं है कि गोल ता जो है वो आए तभी मुन्नस हो। किदरुन में भी तो गोल ता नहीं आ रही, उम्मुन में तो उम्मुन में भी नहीं आ रही जी तो ये मुन्नस थे ना, जी तो ये क्यों नहीं हो सकता है इन्होंने, किदरुन क्यों नहीं हो सकता? हमने पढ़ा था कि जो हमारे बॉडी के पार्ट्स दो दो होते हैं ना, डबल होते हैं, जी वो जी सब मुन्नस होते हैं। सही पढ़ा था हमने, जी, पढ़ा था तो आपने फिर हम बताया। यहाँ पे नहीं क्या, मैं समझ याद नहीं रहा बाजी। हाँ अब याद आया कुछ? जी थोड़ा थोड़ा याद आ गया। यदुन रिजलुन हमने पढ़ा था ना, हाजी ही लगाया था उसके साथ, हाँ। पिछले सबक में पढ़ा था। ठीक है, जो बॉडी दो पार्ट हैं वो मोनस होंगे, उनके साथ हाजी ही लगाना है। यदुन रिजलुन, ठीक है, ऐनुन उजुनुन, कान, नाक कान भी दो होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़िए। हाजा हजरुन, ये पत्थर है। हाजा कमीसुन, ये कमीज है। हाजा किद्रुन, ये उनका महीने ज़हन से निकल गया बाजी। हंडिया है ये। हाँ, ये आती है, किद्रुन आती है किसके साथ? मिल अकतुन के साथ। तो मिल अच्छा। अकतुन जो होता है वो चम्मच होता है ना, मुअन्नस होती है ना। हाजी ही जी इस पे गोलता आ रही है, ठीक है। और ये क्या होती है फिर? ये आपकी हांडी होती है ना, जी जिसमें आप खाना बनाते हैं। सही। तो क्या मतलब, ये हांडी क्या मुज़क्कर है मुअन्नस है? मतलब उर्दू में तो हम मोनस ही लेते हैं, तो यहाँ हाँ। पर तो फिर बाजी गोलता नहीं है, तो फिर ये मुज़क्कर ही होगी ना कि नहीं? जब इसके साथ इशारा हाजी ही लगा रही हूँ तो फिर मुअन्नस ही होगी ना। सही, फिर तो मोनस होगी अगर हाजी ही लगाएंगे तो। देखें, यही तो ऊपर आप जाके देखें किद्रुन के साथ कौन सा इशारा लगाया उन्होंने, इस किद्रुन के साथ हाँ, ऐनुन के साथ कौन सा इशारा लगाया है? हाजी ही लगाया है। तो किद्रुन के साथ भी हाजी, तो इसका मतलब है ये जो है ना, अगर मुअन्नस होगा तभी मुअन्नस का इशारा आएगा ना। अगर ये मुज़क्कर अच्छा। होगा तो मुज़क्कर का इशारा आएगा। कमीज मुज़क्कर जी है, उसके पीछे आपने हाजा लगाया है। जी, बुक तो में भी आप बाजी वो इसके साथ गोलतार नहीं थी, ज़हन में ये बात आ रही है ना मेरे को इस वक्त। तो आपके 90% अल्फाज जो होते हैं वो गोल ता वाले होते हैं, वो बाकी 10% जो होते हैं बगैर गोल ता के आपके आ रहे होते हैं मुअन्नस। जैसे जी बाजी, एक तो आपने बताया कि बॉडी पार्ट हैं जो दो दो होते हैं वो भी मोनस होते हैं। आपको ये याद करने पड़ेंगे, जैसे बिन्तुन बेटी है ना, इसका मतलब आएगा तभी आपको पता लगेगा कि बेटी तो मुअन्नस ही होती है, गोल ता नहीं आ रही, लेकिन आपकी उख्तुन बहन होती है, तो इनका आपको जी मीनिंग आना जरूरी है फिर, ठीक है। जैसे कि जी जी बोलिए। आंटी, ये फिर किद्रुन का क्या रीजन है कि ये फेमिनिन है? जैसे बॉडी पार्ट्स दो होते हैं तो वो फेमिनिन होते हैं, और जैसे जो रियल में जो फेमिनिन है जैसे बकरा या उमुन वो भी फेमिनिन है, तो किद्रुन क्यों फेमिनिन है? किद्रुन इसलिए फेमिनिन है कि आप देखें इसके पीछे जो इशारा लगाया ना अरबों ने, वो मुअन्नस का लगाया हुआ है, हाजा नहीं लगाया, दैट्स व्हाई। हाँ, जैसे वो शम्स के पीछे कौन सा इशारा लगाते हैं? हाजा नहीं लगाते ना। जी, तो थोड़े वर्ड्स हैं जो सिर्फ अरबों ने कहा है कि वो फेमिनिन है, तो इसीलिए। हाँ, थोड़े नहीं है, हाँ थोड़े नहीं, बहुत सारे होते हैं, और हर एक के पीछे रीजन तो है ही, ठीक है। आप रीजन पूछिए, तो रीजन मैं बताऊं आपको, तो इशारा है। ओके ठीक है। अरब उसके लिए कौन सा इशारा, कौन सी जमीर, कौन सा प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, वो रीजन है। अगर उसके लिए प्रोनाउन भी मुज़क्कर का आ रहा है और इशारा भी मुज़क्कर का आ रहा है, तो दोनों में से कोई एक भी आ रहा है तो मुज़क्कर है। आप उसके साथ जो रिलेटेड चीज है वो देखनी है आपने, वो मुज़क्कर आ रही है मुअन्नस आ रही है, वो रीजन है इसके। जी जी। तो आप किद्रुन को ऊपर जाके देखेंगी तो मिला का तुम दोनों के साथ हाजी ही का इशारा है, ठीक है। ये नहीं कि इसके साथ तो हाजी ही आया उसके साथ हाजा आया, ऐसा नहीं। तो फिर आप वाली बात है, याद करने पड़ेंगे ये वाले खास वर्ड्स जो हैं, इनको याद करना पड़ेगा। नहीं, याद करना की जरूरत नहीं है, पीछे इशारा देख लें कौन सा इशारा आ रहा है। जब ट्रांसलेशन करते हो तो पता चल जाएगा बाजी, लेकिन अब जिस तरह अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स की सूरत में कर रहे हैं, तो फिर हम अगर याद किया होगा तो फिर उस सेंस में लिखना होगा। देखें, इसलिए तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और आपको सारे वर्ड उन्होंने पहले पढ़ा दिए ऊपर। ये नहीं कि कोई नए वर्ड आपको दे रहे हैं, आपको ऐन नून सब, हजरुन, नाफिजतुन सब पढ़ा है। सही।
चलिए अब इसको पढ़े, नंबर 9। जी, हाज़िही नाफिज़तुन, ये तो बच्चों वाला ये काम हो गया ना, आपको पता है गोल तार, ये तो मुअन्नस होगा आज़ी लगा देंगे। बात तो इसमें है ना सारी, कि इनको भी पहचाने। ऐनुन, सही, क्योंकि बॉडी के 2 पार्ट्स हैं। अबुन इसका मुज़क्कर होता है, ठीक है, अबू तो होते ही जी, मुज़क्कर है। इसी तरह इब्नुन के साथ क्या लगाएंगे, इब्नुन बेटा होता है, हाजा लगाएंगे। हाज़ा, आपको पता है इसका अगर मतलब नहीं आता तो फिर और बात है, इब्नुन का मतलब ही आपको नहीं आता तो फिर आप क्या लगाएंगे, आप कुछ नहीं। इसलिए मीनिंग किधरों का भी आना या इशारा जी, देखना वो आपके लिए जरूरी है। चलिए अब यहाँ पे सही, क्या हो गया, हाजी ही नाफिजतुन, आगे। हाँ, हाज़िही बक़रतुन, ये गाय है। हाज़ा मकतबुन, ये मकतब, मदरसा है, स्कूल जो भी है। हाज़ा नाक़तुन, ये ऊँटनी है, उठनी है, ऊँटनी ठीक है। जी। हाज़ा मुहंदिसुन, ये इंजीनियर है। हाज़ा मुअज़्ज़िन, ये मुअज़्ज़िन है। हाज़ा मुमर्रिज़तुन, ये मरीज़ा है। हाजा हाज़िही, सॉरी, हाज़िही, इसको देख के लगाएं, ठीक है, इशारा में। बस, जब भी प्रोनाउन देखते हैं वो भी देख के लगाते हैं। प्रोनाउन लगाने के लिए पीछे वाले लफ्ज को देखना पड़ता है, इससे मौसूल लगाने के लिए भी पीछे वाले लफ्ज को देखना पड़ता है, लेकिन ये वाला इशारा लगाने के लिए आपको आगे वाले लफ्ज को देखना पड़ता है। जी, जैसे आपने लगाना है ना अल्लाह ज़ी या अल्लाह ती लगाना है, तो वो आप पीछे वाले को देखेंगे, पीछे क्या आ रहा है उसके मुताबिक लगाएंगे, अल्लाह ज़ी या अल्लाह ती या अल्लाह ज़ीना, जो भी लगाएंगे इसको देख के। इस तरह ज़मीर लगाते हैं आप हिया, वो भी पीछे वाले को देख के लगाएंगे, ठीक है, वो उसकी तरफ लौटनी होती है, तो यहाँ पे आगे को देखना है। चलिए शरीर उनको देखेंगे, क्या मुज़क्कर है मुअन्नस है। हाज़ा सरीरुन, ये बिस्तर है, बेड है या बिस्तर आपका भाई जी? बेड, बेड, पलंग, बेड है, पलंग, पलंग, चारपाई। हाँ जी। हाज़िही हदीक़तुन, ये बाग है। हाज़िही तालिबतुन, ये तालिबा है। हाज़ा जमलुन, ये ऊँट है। हाज़ा बत्ततुन, हाज़िही बत्ततुन, फीमेल बतख माँ। हाँ बत्तख है, ये बत्तख है, ठीक है ना, उसके साथ ज़ाहिर गोल तार लगी, जमालून में नहीं है। इसको आपने इसके मीनिंग पे गौर करना है। ये वाला जब आप देखेंगे ना तो जमालून, अब इसके मीनिंग पे, इसका मीनिंग ऊंट है तो ऊंट तो हमारी जुबान में मेल है, मुज़क्कर है, इसमें सिर्फ आपको जी, मीनिंग आना चाहिए इस वाले में। सही। जैसे अब उनका ये मतलब बाप होता है तो वो आप लगा लेंगे साथ, वालिद होता हाँ, है। नाक़तुन अच्छा, ऊँटनी होगी और जमातुन ऊँट हो गया। ठीक है, बिल्कुल सबको समझ आ गई कि प्रैक्टिस की जरूरत है। अभी लेसन छोटा सा, जी, मैं चाह रही थी आज सही। खत्म कर लेना इसको। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है, तमरीन जो है ये वाली, और ऊपर वाली जो तमरीन थी इसको तो रीड एंड राइट है, करना चाहें ये ऑप्शनल होती है, ठीक है, इसको रीड एंड राइट करना है तो करें, वरना ये वाली जो है ये आपने लिख के करनी होती है। और इसमें अभी हम दूसरी वाली नंबर 3 है, उस पर जाते हैं, उस पर भी कुछ समझ आ जाएगा। कौन आना चाहता है? सना पाएंगी, जल्दी से आइए। मैम जी शोर तो नहीं हो रहा आपके पास? जी मैं थोड़ी अलग हो जाती हूँ। हाँ जी पढ़िए क्वेश्चन नंबर। अशीरी इलल कलमातिल वारिदती फित तमरीनी निस्सानी बिस्मी इशारतिन लिल बैदी जालिका तिलका। जालिका तिलका, इशारत लिल बैदी क्या होता है? इसमी इसमी इशारतिन लिल बैदी, दूर का इशारा, बैद है ना। अच्छा अशिर का मतलब है इशारा करो, ठीक है ना, इशारा करो इलल कलिमातिल वारिदती, तरफ आने वाले अल्फाज के, फी तमरीन सानी, ये फी तमरीन सानी ये कौन सी, ये ऊपर वाली है, ठीक है, जो हमने, ये तो नंबर 3 है ना, उसी के अंदर हमने अभी दूर के इशारे लगाने हैं। पहले हमने कौन से लगाए थे? पहले हमने यहाँ पे कौन से इशारे लगाए थे? हाजा और हाजी ही लगाए थे ना।
जी पास के इशारे. हाँ, पास के इशारे, नियर के इशारे. अब हमने फार के इशारे लगाने हैं. जी. चलिए अभी आप लगाती जाएं, तर्जुमा करती जाएं जल्दी जल्दी. मैम यही दोबारा करना है? हाँ, यही इसमें अब दूर के इशारे लगाने हैं ना. अच्छा अच्छा. अब दूर के इशारे कौन से होते हैं? मैम जालिका और तिल का. हाँ, तो चलें लगाएं. जालिका कहाँ आता है, तिल का कहाँ होता है? पहले आपने वर्ड को देखना है. ये वर्ड जो लिखा हुआ है इसको देख के फिर इशारा जी. लगाना. उम्मुन तिल का. तिल का उम्मुन. तिल का उम्मुन. जालिका अब्बुन. ये इसके ऊपर तशदीद ना पड़ा करें, ठीक है? सॉरी अबुन अबुन. अबुन. जी अबुन. अब्बू जो होता है ना तशदीद के साथ उर्दू में होता है अब्बू. अच्छा जी जी जी. अबुन. जी. अबुन. इस पे तशदीद है, इसको तशदीद के साथ पढ़े उम्मुन और इसको अबुन. जी. जालिका कलमुन. तिल का मिलआकतुन. आइनुन तो आंखें होती हैं, मतलब फीमेल होती हैं. तो तिल का आइनुन. ऐनुन. हजरुन हजरुन. हजर मैम ये पत्थर होता है ना हजर. तिल सॉरी जालिका हजरुन. जालिका हजरुन. ठीक है जी. जालिका कमीसुन. कदीरुन. जालिका क़िद्रुन. जालिका किद्रुन हांडी है ना. अच्छा तिल का. तिल का क़िद्रुन. तिल का नाफिज़तुन. तिल का बकरतुन. सॉरी जालिका मकतबुन. मीनिंग नहीं बताया. नाफिज़तुन का क्या मीनिंग होता है? नाफिज़तुन मैम मैंने इस हिसाब से बताया क्योंकि इस पे गोल ता है, तामरबूता है और उसके ऊपर वो है दम्मतन है, तो फिर फीमेल ही होगा. हाँ, तो मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है? मैम नहीं याद. सॉरी मैम. किसी को आता है क्लास में? नाफिज़तुन क्या होता है? खिड़की खिड़की. खिड़की होती है. खिड़की हमारे जी. पास भी मुअन्नस है, इनके पास भी मुअन्नस है. कुछ तो सेम ही होंगे, ठीक है, कुछ फर्क जी. होंगे. अच्छा, उसके बाद हांडी हमारे यहाँ भी मुअन्नस है, इनके यहाँ मुअन्नस है. जी. हाँ, आगे. मैम बकरतुन से बोलना है. बकरतुन. हाँ. तिल का बकरतुन. मकतबुन. जालिका मकतबुन. तिल का नाकतुन. नाकतुन का मीनिंग क्या है? तिल का नाकतुन. मैम नहीं पता. नाकतुन हाँ, जमलुन का शी कैमल जिसे कहते हैं ना. अच्छा अच्छा. यस यस मैम. हाँ, तिल का याद नहीं नाकतुन. रहते. नाकतुन शी कैमल. ओके. थोड़े बादाम खाया करें कुछ. जी. चले यहाँ पे क्या है? रात को भिगो दिया करें, सुबह 7 खा लिया करें. मैम बेटी को तो खिला देती हूँ, खुद नहीं. बस माँ का यही हाल है, माँ का यही हाल है. चलिए. जालिका मुहंदिसुन. जालिका मुअज्जनुन. मुअज्जिनुन. ज़ेर है ना. जी जी जी. इसमें वाव नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, सिर्फ हमजा पढ़ा जाए. मुअज्जिनुन अजान मैम से. वाव इज जस्ट अ चेयर. इट्स अ चेयर. चेयर को नहीं पढ़ते, ठीक है. जी जी. चले आगे. मुमर्रिज. तिल का मुमर्रिजतुन. मुमर्रिजतुन. ठीक है. सरीरुन. जालिका सरीरुन. हदीकतुन. तिल का हदीकतुन. तिल का तौलिबतुन. जालिका जमलुन. तिल का बत्ततुन.
फर्क आना चाहिए, फर्क ज़ालिका और तिलका ही लगाना है ना, हाजा और हाजी तो लगाना ही नहीं है। ठीक है, तो पहली दफा एक दफा में ये एक्सरसाइज आपने हाजा और हाजी ही के साथ करनी है और एक दफा आपने तिलका और ज़ालिका के साथ करनी है। ठीक है, और आप कर रही एक्सरसाइजेस के वो भी छोड़ रही है बेटी पे कि बेटी कर लेगी? नहीं मैम, एक्सरसाइज तो मैं करती हूँ, जो छूट जाता है मैम उसको भी दोबारा करती हूँ। हाँ करें, किया करें, लिखा करें। ठीक है, अब दूसरी दफा पढ़ रही हैं किताब तो अच्छी तरह पढ़ें। जी जी अब ये वाली एक्सरसाइज जो है नंबर 2 2 दफा होगी। ठीक है जी जी हाँ, इसके जवाब में भी और इसके ऊपर वाले सवाल के जवाब में भी। यहाँ पर आपका था ना कि यहाँ पे एक तो ये आपने नंबर 2 का क्वेश्चन ये वाला करना है और एक आपने नंबर 3 का ये वाला क्वेश्चन करना है जो ऊपर अभी चला गया, ये वाला एक्सरसाइज एक ही है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर ही आपने डालना है, फिर आप लोग बार बार क्वेश्चन करते हैं ना तो फिर वो बहुत मुश्किल होती है। चलिए अभी नेक्स्ट कौन आ रहा है? शाजिया, शहनाज आप आएंगी? शहनाज, अगर शोर नहीं है तो माइक ओपन कर लें। फाइका, अख्तर बेगम ने भी आज नहीं पढ़ा। आ जाए कोई एक, आ जाए दोनों में से। जी मैं आज नहीं पढ़ पाती, बिजी हूँ। कोई बात नहीं, चलें। कौन आ रहा है फिर? फमीदा आप आ जाए। आज मिशन भी नहीं पढ़ रही। मिशन क्या बात है आज? जी मैम मैं पढ़ी कौसर। आपका क्या नाम है बताइए? कौसर। कौसर, आपने तो पढ़ा है ना आपने। उनके पास शोर आ रहा है फमीदा, आपके पास बहुत शोर आ रहा है आज। मेरा तो आपके माइक में शोर आ रहा है। अच्छा मैं बंद कर देती हूँ। नहीं, ट्राई करें, ऑन करें दोबारा। जी हाँ पढ़िए थोड़ा सा। अल कलिमातु जदीदतु, न्यू वर्ड्स। अल मुमर्रिदातु, अल मुमर्रिदातु, इस गलती को ठीक करें, अभी ठीक करें वरना कभी नहीं होगी। अल हदीक़तु, गार्डन। अल बत्ततु, बत्तख। अल मुअज्जनु, क्या कहते हैं ये, मुअज्जन, अज़ान देने वाला। तो अल नाक़तु, हाँ उर्दू में मुअज्जिन कहते हैं तो अरबी में मुअज्जिन नहीं कहेंगे ना, मुअज्जिन, जिन। ठीक है, आगे। अन्नाकतु, फीमेल जो है ऊँटनी का। ठीक है, ऊँटनी। अलबैदतु, अंडा। अंडा जो आप खाते हैं ना। अब इसके साथ क्या लगेगा? हाजे ही। इसका मतलब है अरबों के अंदर क्या है, अंडा जो है वो मुअन्नस है, मुअन्नस है, क्योंकि वो हाजे ही का इशारा लगाते हैं, गोल ता लगाते हैं। अच्छा ये जो है हाजे ही है। हमारी उर्दू में क्या है, आप तर्जुमा क्या करेंगी? सिस्टर म्यूट कर दें, म्यूट कर दें, बहुत शोर है। आपका माइक चेंज करने वाला है, बहुत शोर है माइक में। तो मैं ये बता रही थी कि जब उर्दू में तर्जुमा करेंगी तो ये अंडा है, ठीक है, करेंगे। अच्छा उसके बाद आप कोई और आ जाए जो सिस्टर कहेंगे पढ़ना है। अख्तर आप आ रही है कि नहीं आ रही है आज? अकीला आप आ जाइए जल्दी जल्दी। मैम अजान हो रही है। अच्छा ठीक है, सही है, चलिए अजान हो गई तो कोई वॉलंटियर करना चाह रहा है? आ रहा है? तायरा आप आ जाए, खत्म करें जल्दी जल्दी। जी अच्छा भाई। अस्माउल इशारती लिल करीब, हाजा मुहम्मदुन, हाज़िही आमिनतुन, आमिनतु। अस्माउल इशारती लिल बाईद, ज़ालिका हामिद, तिलका ज़ैनबु। अच्छा मुझे ये बताएं, अस्माउल इशारती क्या बन रहा है? अस्माउल इशारा ये मुरक्कबे तौसीफी है ये।
یا No. اضافی ہے؟ مرکب اضافی ہے، ادھر زیر ہے اور ادھر تنوین نہیں ہے، الف لام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو پہچان لیں اچھی طرح. یہاں پر بھی اسماء الاشارتی، یہ بھی آپ کا مرکب اضافی بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ للبعیدی کیا بن رہا ہے؟ للقریبی، یہ کیا آپس میں دو لفظ ہیں نا، لی بھی اور قریب کے، دونوں مل کے کیا بن رہے ہیں؟ مرکب بن رہا ہے کوئی؟ لام لگا ہوا ہے ساتھ، اشارت القریب کا صرف للقریب کا پوچھنا. صرف للقریب یہ مرکب بن رہا ہے نا، کون سا مرکب بن رہا ہے؟ للقریبی. یہ اس میں اشارہ ہی ہوگا نا، مرکب اشاری. لیے قریب کون بتائے گا کلاس میں للقریبی کیا بن رہا ہے؟ مرکب جاری. مرکب جاری بن رہا ہے، یہ حرف جر ہے. اور لی جب بھی آتا ہے نا تو الف گر جاتا ہے. القریب تھا یہ، لیکن لی لگنے سے لل قریب ہو گیا، ٹھیک ہے؟ جیسے الکافرون، الکتاب ہوتا ہے نا، تو اب کیا ہوتا ہے جب ہم کرتے ہیں فی لگاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ الف گر جاتا ہے نا. تو بالکل یہاں پر بھی آپ کا الف گر گیا ہے. یہ فی ہے، اس میں تو شاید مسئلہ نہیں. لی جب لگے گا نا لیل کتابی تو پھر آپ کا یہ الف گر جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیل کتابی، تو اس طرح سے ہو جائے گا. اچھا میم اس میں حرف جر کون سا ہے لیکن؟ اب حرف جر آپ نے پڑھے ہیں اتنے سارے، تو لی ہے نا. ابھی تک ہم نے لی نہیں پڑھا، للہ ہی پڑھایا ہے نا. جی جی ہاں، تو للہ ہی میں لی ہے. اب وہاں پہ بھی دیکھیں الف غائب ہو گیا نا، ایک ورڈ بن جاتا ہے نا، ایک ورڈ بن جاتا ہے. اسی طرح للقریبی بھی. تو جب بھی لی اشارہ آئے گا نا کسی کے ساتھ تو وہ الف جو ہوگا بیچ میں سے غائب ہو جائے گا. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا المتقین، المتقین آتا ہے نا، تو جب ہم لی لگاتے ہیں تو یہ الف گر جاتا ہے، یہاں پہ لل ہو جاتا ہے، للمتقین ہو جاتا ہے. یہ الف یہ والا للکافرین، للمومنین، تو وہ الف المومنین کا الف جو ہوگا وہ گر جائے گا. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. تو للقریبی مرکب جاری ہے. یہ دو ورڈ ہیں، ایک نہیں ہے. للہ ہی بھی دو ورڈ ہیں، لی اور اللہ، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر بعیدی بھی جو ہے یہ آپ کے دو ورڈ ہیں، لی اور بعید. تو جب ایک حرف جر ہو اور دوسرا آگے مجرور اسم ہو تو مرکب جاری بنتا ہے. جی اس کے نیچے بعید کے نیچے بھی زیر آئے گی نا حرف جر کی وجہ سے. کبھی وہی بنتا ہے. ہاں بالکل بالکل. اچھا ان چیزوں کو بھی تھوڑا سا غور کیا کریں، غور و فکر کے بغیر نہیں کہ آپ کا کام بنے گا. تو ہر چیز پہ تھوڑا غور و فکر کیا کریں کہ اچھا یہ کیا بن رہا ہے، یہ کیا بن رہا ہے. اب حاضر محمد ان کیا بن رہا ہے؟ حاضر جو ہے وہ مبتدا ہو گیا اور محمد ان خبر ہو گئی. خبر ہو گئی. اب یہاں پہ دیکھیں خبر جو ہے وہ آپ کا کیا آ رہا ہے؟ معرفہ آ رہی ہے آپ کی خبر. خبر آپ کی معرفہ آ رہی ہے. تو خبر معرفہ بھی ہو سکتی ہے. خبر ہوتی تو نکرہ ہی ہے، لیکن جب نام آ جائے تو مجبوری ہے، اس کو نکرہ تو نہیں بنا سکتے نا ابھی. اس کو اور کتنا نکرہ بنائیں گے بتائیں مجھے؟ تنوین ہٹا دیں گے، کیا کریں گے؟ تو یہ آپ کا اس کو اسی طرح ایکسپٹ کرنا ہے. حاضہ، حاضہ محمدن یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. ایسے نہیں کر سکتے کہ حاضہ کو اٹھا کے خبر بنا دیں محمد ان کو، یہ اس کو علم، تو یہ معرفہ بنا. تو باجی یہ ہو گیا، تو حاضہ بھی جو ہے وہ اسم معرفہ ہے، محمد ان بھی اسم معرفہ ہو گیا. تو یہ کون سا مرکب بنے گا؟ یہ مبتدا خبر بنے گا نا. اچھا یہ محمد ہے، یہ محمد ہے کا ترجمہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ جملہ بن گیا، جملہ بن گیا، جملہ اسمیہ بن گیا، اسم سے شروع ہو رہا ہے. اس میں یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، ٹھیک ہے؟ اور خبر کے بارے میں بتایا تھا میں نے کہ ہے کے قریب جو لفظ آتا ہے نا اردو ترجمے میں وہ خبر ہوتی ہے. تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ محمد آ رہا ہے نا. جی تو محمد کو کیا بنائیں گے؟ خبر بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ محمد ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ مبتدا ہو گیا. محمد کیا خبر ہے اور یہ ہے. تو ہے کے لیے تو کوئی ورڈ ہی نہیں ہوتا، وہ تو اپنی طرف سے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ذالک حامد تلک زینب حاذہ آمنۃ، تو یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. تو آپ دیکھیں یہاں مذکر تھا نا، خبر مذکر تھی تو آپ کا مبتدا مذکر آیا، خبر آپ کی مؤنث آئی، تو یہ بھی آپ کا مؤنث آیا، مبتدا بھی مؤنث آیا. یہاں پر بھی ایسی ہے، طور کے اشارے میں بھی، ٹھیک.
जी हाँ, ये 3 चीजों में बराबर होते हैं और एक में बराबर नहीं होते, लेकिन यहाँ पे सही। चारों चीजों में बराबर आ रहे हैं, जी ठीक है, 4 में बराबर आ रहे हैं। ये भी मार्फ है, ये भी मार्फ है, ये भी मार्फ है, ये भी, सब मार्फ है। बाकी ये मैंने पढ़ा दिया है, हाजा बिलाल। ये जी क्या, वजाल ये क्या बन रहा है, हाजा बिलाल? हाजा मुब्तदा है और बिलाल खबर है। हाँ, यहाँ पे भी खबर आपकी मार्फ पे आ रही है, ठीक है, सही। क्योंकि बिलाल, अब इसको नकरा तो नहीं कर सकते ना, तनवीन तो दे दी जी अभी, और क्या नकरा करे। तो अलम जो होते हैं फिर उनको, जैसे होता है ना अंत यूसुफू, आता है ना कुरान मजीद में, आप सूरह यूसुफ पढ़े, अब उसमें यूसुफ, अंत क्या है, ये मुब्तदा है, प्रोनाउन है, ये मुब्तदा है, और यूसुफ क्या है, ये खबर है, ठीक है। अब सही। खबर जो है वो जी मार्फा ला रही, यूसुफ मार्फा है, जी लेकिन हम क्या करें, हम नाम को बदली तो नहीं कर सकते, उसको नकरा तो नहीं बना सकते, तो ये इसी तरह तिल का मरियम हो, और ये फिर आप ये वर्ड पढ़ लें थोड़े से, फिर खत्म करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। वोकैबुलरी है अलबैज़तु एग अंडा, एग अल नाकतु शी कैमल, ऊंटनी, अल मुअज्जिनु मुअज्जन, अलबत्ततु डक, और शी बतख जो डक कहेंगे, शी डक बोलते हैं। अद्दुजाजा, अद्दुजाजा तो हैन मुर्गी, अल मुमर्रिज़तु नर्स, नर्स होगी मुमर। अच्छा, अब इसमें मुमर्रिज़तु आप मुझे ये बताएं कि अलबैदतु के साथ क्या इशारा लगाएंगी, करीब का लगाना हो तो कौन सा लगाएंगे? इसके लिए लगाएंगे तिल का बैज़तु। हाँ ठीक है, अगर दूर का लगाएंगी तो तिल का लगाएंगी, करीब का लगाएंगी तो क्या लगाएंगी? हाज़ी लगाएंगे। हाज़ी ही लगाएंगे, ठीक है। मुअज्जिन उनके साथ क्या लगाएंगी? इसके साथ लगाएंगे हाजा लगाएंगे और जालिका लगाएंगे। जालिका लगाएंगे, ये बस ये चीजें याद रखनी है। और दजाजा के साथ? इसके साथ भी हाजे ही और तिल का। अगर आप हाजा लगाएंगी तो इसको मुजक्कर बना देंगे, ठीक है ना, तो मुजक्कर नहीं जी बनाना, हाजे ही लगाना है, और तिल का हाजे लगाना, तिल का लगाना। ये लगाना। ताज होती है ना, ये मुन्नस की होती है, ता तिलका में, जी बात। ठीक है, ता पे मुन्नस की होती है। और ना के इसके साथ का भी वही हाजे ही और तिल का। तिल का। बत्ता तू, अलबत्ता तो भी हाजे ही और तिल का। तिल का। अलमरिज़तु का भी साथ भी वही हाजे ही और तिल का लगेगा। अच्छा, अगर इसका मुजक्कर बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे? नर्स अगर मेल हो तो क्या बोलेंगे? नहीं पता बात, ज़हन में नहीं आ रहा। गोल ता को ता हटा हटा देंगे, ता हटा ता देंगे, को खत्म। अलमुमर्रिज़ु, अलमुमरिज़ु बना दे, अलमुमर्रिज़ु। हाँ जी वो आपका वो बन जाएगा। और मरीज अलग होता है, मरीज अलग है और नर्स अलग है। मरीज को क्या कहते हैं? मरीज ही कहते हैं, मरीजुन, वलादुन मरीजुन, मरीज़त। मरीजुन, ठीक है, हाँ वलादुन लड़की हो तो मरीजुन, मरीज़तुन। मरीजतुन हो जाएगी, ठीक है। मेल नर्स होगा तो मुमरिदुन होगा, और अगर दूसरा होगा तो मुमरिदतुन होगा। चलिए ठीक है, लेसन खत्म है। लेसन नंबर 8 शुरू करेंगे। आज कोई चांस नहीं था क्लास लेने का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी क्लास हो गई, और इसकी कदर करें क्लास की। बहुत कुछ इसमें आप सीख रहे हैं, और उनको चीज़ों को नोट करने की कोशिश करें। अपनी कॉपी में अपने हाथों से लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे। और जो उर्दू की मैंने आपको दी हुई है ना किताब, जिसमें ग्रामर के नोट्स होते हैं, उर्दू की भी दी हुई है ना? जी हाँ, तो की उसमें से आप नोट सही तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। उसमें से आप देख के, जैसे ये पॉइंट्स टू रिमेम्बर से भी बना सकते हैं, ये जो आपने पढ़े हैं ना, इसमें से भी आप बना सकते हैं। और जो भी इसमें दिए हुए हैं इशारे और ये वो, ठीक है। तो हर सबक के ज्यादा या कम होते हैं, फिर जो मैं एक्स्ट्रा चीजें में कुछ बताती हूँ उनको भी नोट करना होता है ना। जी जैसे मैंने बताया कि एराब बताया, फिर मैंने जेंडर बताया, वो 4 चीजें जो बताई थी शुरू में, वुसअत, वो सारी बताई हैं, वो भी लिखनी होती है, ठीक है। चलिए, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वालेकुम अस्सलाम। फमीदा अपना माइक ठीक करें, ठीक है, इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। अब तो सही आ गया, लेकिन शोर है फिर भी, शोर है फिर। अच्छा जी,
रीलॉग होके देख लिया करें फहमीदा, एक दफा दोबारा ना रीलॉग होके देख लिया करें।